حضرت علامہ ارشد القادری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی بڑا ظالم تھا اور غریبوں کو مظلوموں کو ہمیشہ وہ پریشان کیا کرتا تھا۔ غریب لوگ مظلوم لوگ اس سے ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے، اور وہ اتنے بڑا ظالم تھا اور اتنے بڑا کمبخت تھا کہ وہ ہر 6 مہینے کے بعد نئی لڑکیوں سے نکاح کیا کرتا تھا۔ جس لڑکی سے ایک بار نکاح کر لیا کرتا تھا، اس لڑکی کو 6 مہینے کے بعد اس کے محل میں ایک قید خانہ تھا، اس قید خانے میں 6 مہینے کے بعد اکثر لڑکیوں کو وہ بند کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہا تھا، اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پہ، ایک حسن و جمیل لڑکی پہ نظر پڑی، اس کا دل مچلنے لگا اور اس کا نیت خراب ہو گیا۔ تو اپنی حویلی پر واپس آیا اور آنے کے بعد اپنے وزیر سے اس نے کہا کہ اے وزیر، میں اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وزیر تھا، وہ بادشاہ اپنے وزیر سے کوئی بھی بات چھپایا نہیں کرتا تھا، اپنے ساری دل کی باتیں وہ بتا دیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک کام کرو، اس لڑکی کا پتہ تلاش کرو کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اس کے فیملی میں کون کون سے لوگ ہیں، پتہ کرو، معلوم کرو کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے فیملی میں کون لوگ رہتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے 1 دن کا ٹائم دیں، میں 1 دن کے اندر اس لڑکی کا پتہ تلاش کر کے میں آپ کو ضرور اطلاع کروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وزیر نے بادشاہ کے چند سپاہیوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ فلاں لڑکی ہے فلاں جگہ پر، بادشاہ سلامت نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، اس لڑکی کا پتہ تلاش کرو، پتہ معلوم کرو کہ کہاں کی رہنے والی ہے اور اس کے فیملی میں کون کون لوگ رہتے ہیں۔ تو چند سپاہیوں کو وزیر نے بھیجا، تو لوگوں سے اس نے پوچھنا شروع کیا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی کا فلاں جگہ پہ گھر ہے اور اس کے فیملی میں نہ اس کے ماں ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ اس کے بھائی ہے، نہ اس کے بہن ہے، اس کا صرف ایک بوڑھا چچا ہے جو اس لڑکی کو دیکھ بھال کرتا ہے، اس لڑکی کا پالن پوشن کرتا ہے۔ ایک وہ بوڑھا ہی چچا اس کی زندگی میں ہے اور اس کے گھر میں ہے۔ تو سپاہی اتنا بات معلوم کر کے اور وزیر کے پاس آیا اور وزیر سے کہنے لگا کہ اس کے فیملی میں صرف اس کے ایک بوڑھا چچا ہے۔ تو وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کے فیملی میں اس لڑکی کا پتہ چل گیا کہاں کی رہنے والی ہے، اور اس کے فیملی میں صرف اس کے بوڑھا چچا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ خوشی سے مچلنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک کام کرو، چند سپاہیوں کو اس لڑکی کے گھر پہ بھیجو اور اس کے چچا کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وزیر نے چند سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس لڑکی کے چچا کو بادشاہ کی بارگاہ میں بلا کر لاؤ۔ تو چند سپاہی اس لڑکی کے چچا کے پاس گئے اور سپاہی نے دروازہ کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ سپاہیوں نے آواز دیا کہ باہر نکلو۔ تو اس کے چچا جب باہر نکلے تو سپاہیوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ نے اپنی حویلی پر بلایا ہے، بادشاہ نے اپنے گھر پہ آپ کو بلایا ہے۔ تو لڑکی کے چچا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ بادشاہ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ بادشاہ تو جب کسی کو اپنے حویلی پر بلاتا ہے جب کوئی کام ہوا کرتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے سزا دینے کے لیے اپنے حویلی پر بلاتا ہے، شاید مجھ سے بھی تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی۔ تو اس کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں، میں آ رہا ہوں، تم جاؤ۔ اتنا کہا اور لڑکی کے بوڑھے چچا کانپتے ہوئے بدن لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا اندر۔ تو بھتیجی نے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے، آپ اتنے ڈر کیوں رہے ہیں، آپ اتنے کانپ کیوں رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی؟ تو چچا نے کہا کہ بیٹی بات کچھ ایسی ہے کہ بادشاہ کے حویلی سے مجھے خبر آیا تھا کہ آپ کو حویلی پر بلایا جا رہا ہے، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کہیں حویلی پر جانے کے بعد کہیں مجھے سزا دی جائے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ چچا آپ گھبرائیں نہیں،
अल्लाह का नाम लेकर और बादशाह के हवेली पर जाएं और देखें कि क्या बात है। तो उसके चचा ने कहा ठीक है बेटी, और वो बादशाह की बारगाह में गया। तो जाने के बाद बादशाह के बारगाह में गया और बादशाह ने उसे बड़ी अदब के साथ और अच्छे जगह पर बैठाया और उसे अच्छे खातिरमान किया। नाश्ता वगैरह हर चीज़ उसने कराया और अच्छे से इस तरह खातिरमान किया जैसे उनका कोई ख़ास मेहमान हो। तो वज़ीर ने कहा कि ऐ शख्स, तुम्हारी जो भतीजी है वो मेरे बादशाह को पसंद आ गई है और मेरे बादशाह उससे निकाह करना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो उस लड़की के चचा ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, आप कहाँ और मैं कहाँ, आप कितने ऊंचे ख़ानदान के हैं, आप रईस हैं और मैं गरीब हूँ। एक दिन खाता हूँ तो दूसरे दिन का इंतज़ार करता हूँ कि कल क्या पकेगा, क्या बनेगा, कल मैं क्या खाऊँगा, कल का मैं सोचता हूँ। इसलिए ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम्हें रिश्ता ये मंजूर नहीं है, अभी मैं प्रेम से मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ और मोहब्बत से कह रहा हूँ कि रिश्ता कर ले, और अगर तू नहीं मानेगा तो मैं ज़िद करूँगा, ज़बरदस्ती तेरे भतीजे को मैं सिपाही को भेज कर मैं घर से उठवा लूँगा। तो उस लड़की के चचा ने मजबूरन कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे रिश्ता मंजूर है। बादशाह ने एक टाइम बनाया और निकाह का डेट फिक्स किया और अपने घर पे वो चला गया। लड़की के चचा अपने घर पे गया तो जाने के बाद माथे पर पसीने थे, आंखों में आंसू थे। लड़की ने पूछा, चाचा जान क्या बात है, आपके माथे पर पसीने क्यों आ रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तो लड़की के चचा ने कहा कि बेटी बात कुछ ऐसी है कि बादशाह के हवेली पर जब मैं गया तो बादशाह ने तुझसे निकाह करने के लिए उसने मुझे कहा, तो मैंने मना कर दिया। तो बादशाह ने कहा कि अगर सही तरीक़े से और इज़्ज़त से पेश नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी भतीजी को घर से उठवा लूँगा। तो मैंने मजबूरन हाँ कह दिया है। तो उस लड़की ने अपने चचा से कहा कि ऐ चचा, घबराने की क्या ज़रूरत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने जो निकाह के टाइम फिक्स किए थे, जो डेट मुतय्यन किए थे, उस डेट पर बादशाह ने निकाह किया और निकाह करने के बाद लड़की को अपने घर लाया। और घर लाने के बाद कई दिन के बाद बादशाह ने उस लड़की से राबता कम कर दिया। बादशाह पहले उस लड़की को निकाह से पहले उस लड़की को बहुत चाहता था, दिलो जान से चाहता था, लेकिन जब निकाह हो गया और जब शादी के कई दिन गुजर गए तो वही लड़की बादशाह को अच्छी नहीं लग रही थी, वही लड़की बादशाह को अच्छी नहीं लग रही थी। बादशाह का दिल फीका पड़ने लगा। तो एक दिन बादशाह की एक कनीज़ आई, यानी ग़ुलाम लड़की आई, और उसने बादशाह की बीवी को देखा। उसने कहने लगा कि ए बेगम, ए मलका, तुझे खबर नहीं, तुझे पता नहीं कि ये बादशाह जिससे तुमने निकाह किया है ये कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा कमीना है, और तुझे ये शायद ये पता नहीं होगा कि जिस लड़की से ये निकाह करता है 6 महीने के बाद उसकी हवेली में एक कैद खाने है, जिस कैद खाने में 6 महीने के बाद हर लड़की को ये कैद कर देता है। अभी भी तुम चाहो तो चलकर उस कैद खाने में देख सकती हो कि सैकड़ों लड़की हैं जिसको बादशाह ने कैद खाने में बंद करके रखा है, और तुझे भी 6 महीने जब हो जाएंगे तो तुझे भी कैद खाने में वो बंद कर देंगे। तो बादशाह की जो लड़की थी, जो बीवी थी, वो अल्लाह ताला का जिक्र किया करती थी, अल्लाह ताला की हमेशा इबादत किया करती थी, वो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ा करती थी। तो बादशाह के कनीज़ ने देखा तो बादशाह के कनीज़ ने कहा कि आज जो सैकड़ों लड़कियां जो कैद खाने में बंद है, तुम अल्लाह की इबादत करती हो, अल्लाह का जिक्र करती हो, अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना बयान करती हो, अगर तुम चाहो उन तमाम लड़कियों को आज़ाद करवा सकती हो, आज़ाद कर सकती हो। बादशाह की इस बीबी की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई जब ये सुनी कि बादशाह ने कई लड़कियों को कैद खाने में बंद करके रखा है, हर लड़कियों से निकाह करता है और 6 महीने के बाद कैद खाने में बंद कर देता है। तो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, यानी ये घबराने लगी, परेशान हो गई। तो उसमें उस बादशाह के कनीज़ ने कहा कि अगर तुम चाह सकती हो तो उन तमाम लड़कियों को कैद खाने से आज़ाद करवा सकती हो, आज़ादी दिलवा सकती हो। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगी, मैं चलने को तैयार हूँ। तो बादशाह के कनीज़ ने कहा कि जब बादशाह शिकार पे चले जाएंगे
तो मैं तुझे उस कैद खाने पर लेकर चलूँगी। तो बादशाह की बीवी ने कहा ठीक है। और जब बादशाह शिकार पे चला गया तो वो बादशाह की कनीज़ उस मलका को, यानी बादशाह की रानी को, बादशाह की बीवी को उस कैद खाने पर लेकर गई। उसने अपनी निगाहों से देखा कि कैद खाने में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी सैकड़ों खातून हैं जिसको बादशाह ने कैद खाने में बंद करके रखा है। तो बहुत सारी लड़कियां ने जब बादशाह की बीवी को देखा तो आगे बढ़ गई और इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ बादशाह की बीवी, अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हो, क्योंकि यह बादशाह बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बड़ा जालिम है। हम लोगों को पहले फांसा और पहले लालच दिया और लालच देने के बाद मुझसे निकाह किया और निकाह करने के बाद 6 महीने के बाद मुझे कैद कर दिया है। और हम जैसे, हमारी जैसे कितनी बहनें, तुम देख लो नज़र उठाकर, कितनी बहनें हैं जिसको बादशाह ने झांसे देकर निकाह किया, 6 महीने के बाद उसको कैद खाने में बंद कर दिया। उसमें एक बूढ़ी औरत भी जिससे बादशाह ने निकाह किया था और उसको कैद खाने में बंद कर दिया था। बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और कहने लगी कि बेटी, तुझे पता नहीं कि ये बादशाह कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा कमीना है, कितना बड़ा कमबख्त है। ये तुझे भी 6 महीने के बाद तुझे भी ये कैद खाने में बंद कर देगा। तो उस लड़की ने, बादशाह की बीवी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को आज़ादी दिलवाने के लिए आई हूँ। तो उस बूढ़ी ने कहा कि जिस पर तुम नाज करती हो, जिस पर तुम फ़ख्र करती हो, जो बादशाह की कनीज़, जो बादशाह की गुलाम लड़की तुझे यहाँ तक लेकर आई है, ज़रा पीछे मुड़ कर देखो वो है कि नहीं। तो बादशाह की बीवी ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो वो बादशाह की कनीज़ भी गायब थी।